Okay, today we are going to perform Playfair cipher using C programming. So let us understand what type of coding and how to code the algorithm, encryption algorithm of Playfair cipher in C language. So I am sharing here my whiteboard. You see how uh, the Playfair cipher is working, and based on it we have to code in C programming. So we know that in Playfair cipher we have to uh, first implement a key matrix, then we can do a pairing of given plain text, and we see the location of each pair in the Playfair key matrix. So here I am taking one example. For example, suppose we have a key is equals to occurrence and plain text is equals to for example, we are going to repeat our previous example, tall trees. So our first step is to create the matrix. So here I am going to create one matrix, 5 cross 5 matrix. When we are doing coding, we have to give the label of each row and each column. So this is the row 0, this is row 1, this is row 2, this is row 3, and this is row 4. By the same way, this is column 0, column 1, column 2, column 3, and column 4. After generating the key matrix, we have to do the pairing of the given plain text. So our plain text is tall trees, so TA, then double L की जगह हमें पेडिंग करना पड़ेगा X से, then LT, RE and ES. We have to see the location of each this pair into the key matrix. So let us first complete the key matrix. So O, C, C is again, so we have to omit it. U, R, E, N, C and D both are repeated, so we have to omit it. Next cells we have to fill with remaining letters of A to Z. So A, B, C is there, D, E is there, F, G, H, I and J, K, L, M, N is there, O is there, so P, Q, R is there, S, T, U is there, so V, W, X, Y and Z. Each of the cell is known by its indexing. So it is like for example, if the letter is in first cell, then its index is row 0 column 0, like that. If it is in second column and the first row, then its index is row 0 column 1. So if we understand this thing, the next thing we have to do the coding. So here we have to remember only three rules. The rule 1 क्या है हमारे पास कि that row of the first letter, suppose इसको हम नाम देते हैं row of the 0 first element, and the row of the second element, that is R1, if equal.
If R0 and R1 is equal, then what we have to do? We have to take the next, means adjacent character of the current character as the cipher character. So if this rule will be applicable, then consider the coordinates of the letter 1. मैं इसको बोलता हूँ L1. if L1 के कोऑर्डिनेट है R0 C0 और लेटर 2 के कोऑर्डिनेट है R1 C1, और अगर एक केस है कि रो ऑफ 0 इज इक्वल्स टू रो ऑफ 1, मतलब दोनों लेटर एक ही रो में हैं, then in that case we have to take the next element. means next element में क्या होगा? रो वही का वही रहेगा, कॉलम चेंज हो जाएगा. so for letter 1 the cipher character C1 हमको क्या मिलेगा? उसका रो सेम रहेगा, रो 0, बट कॉलम विल बी इंक्रीज बाय 1, दैट इज C0 प्लस 1. बाय द सेम वे C2 के लिए क्या मिलेगा? रो उसका वही रहेगा R2, बट कॉलम विल बी चेंज, क्योंकि हमें उसका एडजेसेंट कैरेक्टर चाहिए एज अ साइफर कैरेक्टर. सो in the encryption algorithm this is our first step. Rule 2. दूसरा रूल क्या है हमारे लिए? if column of both the letter is same, means कि दोनों लेटर एक ही कॉलम में हैं. so see the case, for example हमारे पास इस तरह से है कि एक लेटर है F, एक लेटर है T. तो हम समझ रहे हैं कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है? R1 C4 और इसका क्या है? R3 C4. C4 कॉमन आ रहा है, मीन्स both letters are in a same column. so if this case happen, then our cipher character will be the character below it. तो F के लिए क्या हो जाएगा? L हो जाएगा. so the coordinate of L will be R2 and C4. so see here, row will be increased, column will remain same. so by the same way, for example suppose L1 is equals to L1 के कोऑर्डिनेट इस तरह से है, R0 C0, L2 के कोऑर्डिनेट है R1 C1. तो उसके रिलेटेड साइफर कैरेक्टर हमको क्या मिलेगा? C1. रो विल बी इंक्रीज, सो R0 प्लस 1, और उसका कॉलम जो है वही का वही रहेगा. बाय द सेम वे फॉर C2, R1 प्लस 1 उसका बिलो कैरेक्टर, एंड C1 उसका कॉलम सेम रहेगा. सो दिस इज द रूल 2. नाउ व्हाट इज रूल 3? रूल 3 में हम क्या करते हैं? नाइदर रो आर इक्विवेलेंट नॉर दी कॉलम आर इक्विवेलेंट. मीन्स दोनों सेम रो में भी नहीं है एज वेल एज सेम कॉलम में भी नहीं है. इफ दिस इज द केस, देन व्हाट विल हैपन? सी फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करो कि हमारा एक पैर है ए और दूसरा पैर है एस. तो इसमें क्या करते हैं हम? पहले वाले का रो देखते हैं, दूसरे वाले का कॉलम देखते हैं, और जो कैरेक्टर मिलेगा दैट इज आवर साइफर कैरेक्टर. तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ए इज इक्वल्स टू R1 एंड C1. ठीक है. बाय द सेम वे S इज इक्वल्स टू R3 एंड C3. तो उसकी जगह हमको क्या मिल रहा है? D मिल रहा है. मीन्स पहले का रो दूसरे का कॉलम. तो D का क्या होना चाहिए? D इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? A वाले का रो और S वाले का कॉलम, R1 C3. देखो R1 C3 हो रहा है D का कोऑर्डिनेट. ठीक है. सो दिस इज द थर्ड केस. उसमें क्या करेंगे हम?
जिसका साइफर कैरेक्टर चाहिए उसका रो, मतलब रो चेंज नहीं होगा, कॉलम चेंज करेंगे, और दूसरे के लिए उसका रो सेम रहेगा, कॉलम पहले वाले का हो जाएगा। तो सो कॉलम विल बी स्वेप्ट इन दिस केस। सो सी हियर, सपोज लेटर 1 के कोऑर्डिनेट्स है R0 C0, लेटर 2 के कोऑर्डिनेट्स हैं R1 C1। सो साइफर कैरेक्टर्स क्या मिलेंगे, C1 इज इक्वल्स टू, उसका रो सेम रहेगा R0, कॉलम हो जाएगा C1, C2 के लिए उसका रो सेम रहेगा R1, कॉलम हो जाएगा C0। सी हियर द कॉलम्स आर स्वेप्ट। यहाँ पे आप देखिए कॉलम हमने क्या किया, यहाँ पे कॉलम ये है, यहाँ पे कॉलम ये है, ये स्वैप हो गया। तो ये 3 केस हमको कंसिडर करने व्हेन वी आर डूइंग कोडिंग। बाय द सेम वे और चीज भी हमको यहाँ पे कंसिडर करनी है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास पेयर है L and Z. Now see, this is the case when columns are equal, means both the letters are in a same column. So we have to consider the below character as the cipher character. So L के लिए होगा T, तो उसके लिए तो हम simply रो को increase कर देंगे, there is not any issue. But for Z, if we are doing the increment in row, then we will get R4 plus 1, that is R5, which is not possible. So we have to check that, and we know that our column is fixed by 5 cross 5, 5 cross 5 से बड़ा तो possible ही नहीं है यहाँ पे matrix. So we know that the maximum index of any row as well as any column is 4, 0 से start कर रहे हैं तो 4, ठीक है ना. So here we have to check that if the row of any letter जिसके लिए हमें साइफर कैरेक्टर ढूंढना है, विच इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 5, और वी कैन सिंपली से दैट ग्रेटर देन 5, तो R1 की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, ठीक है ना. तो R0 प्लस 1 जो होगा दैट विल बी 0 इंस्टेड ऑफ 6. यहाँ पे 4 है तो 4 की जगह 5 नहीं करना है बट 0 करना है, ठीक है ना. तो इस तरह का केस आता है तो हमें यहाँ से वापस स्टार्ट करना है, एक एक्सप्लिसिट कंडीशन हमको लिखनी पड़ेगी. बाय द सेम वे इफ वी हैव द केस लाइक दिस कि C एंड E है तो C के लिए तो कॉलम इंक्रीमेंट हो जाएगा इजीली, बट E के लिए इंक्रीमेंट करने जाएंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, सो उसको हमें 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा. सो दिस कंडीशंस वी हैव टू पुट एक्सप्लिसिटली व्हाइल वी आर डूइंग कोडिंग. सो सी हम उसका कोडिंग करने जा रहे हैं अब, तो मैं आपके साथ ऑनलाइन C कंपाइलर शेयर करता हूँ. अब आई होप यू अंडरस्टैंड what is the concept behind Playfair cipher while we are implementing it in C language. So here I am sharing open GDB. Okay. For sake of simplicity, we are giving matrix manually. उसके लिए हम कोडिंग नहीं कर रहे हैं, उसको हम मैन्युअली ही दे रहे हैं, ठीक है. तो उसका कोडिंग भी आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो जो डुप्लीकेट कैरेक्टर्स है उसको रिमूव करना पड़ेगा, फिर एक 5x5 का एरे लेना पड़ेगा, उसमें 1 by 1 कैरेक्टर्स को की के कैरेक्टर्स को फिल करने पड़ेंगे. बाद में आपको देखना पड़ेगा कि ABCD में से कौन सा रिमेनिंग कैरेक्टर बचा. इन द सीक्वेंस वी हैव टू फिल द रिमेनिंग सेल from the remaining letters of alphabets A to Z. So see here I am starting the coding and I am going to fill a matrix manually, key matrix manually. So include stereo.h. It is always a best practice to return a value, so instead of void I am giving integer main. Then we are taking one character array 5 cross 5 to fill it with the key.
तो की के एलिमेंट हम ले लेते हैं यहाँ पे। वाइट बोर्ड से मैं देख देख कर लेता हूँ कि हमने किस तरह से बनाया था। So the first row of the array will become O C U R E. Second will be N A B D F. Third will be G H. Here you can take I or J, K and L. The next is M P Q J T. Sorry, S T. S T. And the last row of the matrix will be V W X Y and Z. So this is our character array which is used as a key matrix, next we are taking characters of the plain text. उसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ PT, और ऐसे ही 10 साइज ले लेते हैं उसका रैंडम, ठीक है। फिर इंडेक्सिंग वेरिएबल ले लेते हैं रो के लिए एंड कॉलम के लिए फॉर द फॉर लूप। सो I J रो एंड कॉलम। एक वेरिएबल ले लेते हैं रो ऑफ द फर्स्ट लेटर, तो उसको मैं लेबल देता हूँ R, उसको 1 ही देते हैं टू रिमूव द कंफ्यूजन। R1 इज इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं, इनिशियलाइज किया 0 से। R2 इज इक्वल्स टू भी 0 ले लेते हैं, इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो भी चलेगा। C1 इज इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं फॉर द कॉलम ऑफ द फर्स्ट लेटर, एंड कॉलम ऑफ द सेकेंड लेटर उसको ले लेते हैं C2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। उसके बाद हम एक की मैट्रिक्स को प्रिंट करवा देते हैं, जो हमने मैन्युअली दिया है उसको प्रिंट करवाते हैं टू सी द रिजल्ट। प्रिंट एफ ट्रिक्स, ठीक है। की मैट्रिक्स 5 क्रॉस 5 है, सो हियर वी हैव टू यूज टू लूप्स, वन इज फॉर रो एंड वन इज फॉर कॉलम। सो फॉर I is equals to 0, know that our key matrix is of 5 cross 5, so I is less than 5, A plus plus, for the column, for J is equals to 0, J is less than 5, J plus plus। क्या करना है हमको, प्रिंट करना है। प्रिंट एफ परसेंटेज C, भी करंट कैरेक्टर है अभी एरे का I एंड J इंडेक्स पे, उसको हम सिंपली प्रिंट करवा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो छोड़ देते फॉर बेटर आउटपुट, सो स्लेश n, दिस इज द एंड ऑफ लूप। की मैट्रिक्स को हमने प्रिंट करवाया, कोई लॉजिक लगाया नहीं है अभी तक। अब हम क्या करेंगे, यूजर से जो प्लेन टेक्स्ट है उसको इनपुट में लेंगे। सो मैसेज देते हैं एंटर टेक्स्ट, इसको इनपुट लेते हैं scanf, इट्स अ कैरेक्टर टाइप, सो परसेंटेज S, स्टोर किस में करेंगे, PT में, ठीक है। जो प्लेन टेक्स्ट था हमारा उसको आउटपुट में हम
शो करवाते हैं कि भाई आपका प्लेन टेक्स्ट ए था और आपका साइफर टेक्स्ट ए मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सो जो यूज़र ने इनपुट दिया है उसको हम प्रिंट करवा रहे हैं। प्लेन टेक्स्ट क्या है उसका, तो यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे %s फ्रॉम pt। ओके, अब हमारा मेन लॉजिक स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट दी कोऑर्डिनेट्स मींस एरे इंडेक्स ऑफ द गिवन इनपुट प्लेन टेक्स्ट। तो प्लेन टेक्स्ट में हम पेयर वाइज इनपुट देंगे, फॉर एग्जांपल की p0 p1 फर्स्ट कैरेक्टर सेकंड कैरेक्टर लाइक दैट, पेयर वाइज, ठीक है ना। तो पेयर वाइज जो हम इनपुट दे रहे हैं उसमें p0 के कोऑर्डिनेट क्या है, p1 के कोऑर्डिनेट क्या है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। सो उसके लिए भी 5x5 का मैट्रिक्स है तो 2 बार लूप लगेगा। सो सेम लूप फॉर I इज इक्वल्स टू 0, I इज लेस देन 5, I प्लस प्लस, फॉर J इज इक्वल्स टू 0, J इज लेस देन 5, J प्लस प्लस। अब ये लूप पूरा घूम रहा है, उसमें हमें क्या चेक करना है, हर एक इंडेक्स को अपने p0 और p1 के साथ कंपेयर करना है कि जो करंट कैरेक्टर आया लूप में दैट कैरेक्टर इज मैचेस विथ और प्लेन टेक्स्ट कैरेक्टर और नॉट। सो इफ एरे ij इज इक्वल्स टू pt0 मीन्स हमारे फर्स्ट कैरेक्टर के साथ मैच होता है, तो हम क्या करेंगे, उसको उसके कोऑर्डिनेट नोट डाउन करके रखेंगे। सो
So we check that if R2 is equals to 4. So अगर ये केस है, क्या कराएंगे, साइफर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, अगर कॉलम सेम है तो हमें क्या करना है, रो को इंक्रीमेंट करना है ना। सो R1 प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पे C1 का C1 रहेगा, C1 विल नॉट चेंज। बाय द सेम वे R2 की जगह क्या हो जाएगा, लास्ट रो था, सो इट विल बी 0 और C2 का C2 ही रहेगा। ठीक है। अब एल्स पार्ट में, मतलब कि दोनों रो बीच में ही है, तो क्या चेंज होगा, R1 की जगह R1 प्लस 1 हो जाएगा, C1 का C1 रहेगा, R2 का R2 प्लस 1 हो जाएगा और C2 का C2 ही रहेगा। ठीक है, C2। Now we have to check the third case. कि दोनों लेटर्स सेम रो में भी नहीं है, सेम कॉलम में भी नहीं है। सो इफ R1 is not equals to R2 and C1 is not equals to C2। ठीक है। सो इन दैट केस सिंपली हमें क्या करना है, प्रिंटफ ही करना है इस केस में तो, और रो एंड कॉलम स्वैप कर देने हैं। सो फर्स्ट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, R1 सेम रहेगा, C1 प्लस 1 हो जाएगा। बाय द सेम वे R2 C1 प्लस 1 नहीं होगा लेकिन C2 हो जाएगा दूसरे का कॉलम। बाय द सेम वे R2 सेम रहेगा और यहाँ पे C1 हो जाएगा पहले का कॉलम। ठीक है। उसके बाद रिटर्न 0। ये हमारा कोडिंग पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर, अब यहाँ पे हम वापस आ जाते हैं व्हाइट बोर्ड पे। व्हाइट बोर्ड कहाँ पे चला गया, तो कैसे, और फर्स्ट पेयर इज TA। तो TA को हम सॉल्व करते हैं इसमें। ठीक है। तो T कहाँ पे है, T इज हियर और A यहाँ पे है, A इज हियर। तो केस हुआ हमारा थर्ड। तो पहले वाले का रो, T का रो और A का कॉलम। तो हमको क्या मिलेगा, TA की जगह TA इज इक्वल्स टू, T की जगह हमें मिलता है P और A की जगह मुझे मिलता है F। ठीक है ना। अब ये केस हम इसको रन करके देखते हैं। हमारा फर्स्ट रो, फर्स्ट प्लेन टेक्स्ट का पेयर जो है उसको हम इनपुट में देंगे और उसका आउटपुट चेक करेंगे। सो अगेन मैं शेयर करता हूँ आपके साथ सी कंपाइलर। अब इनपुट में हमें क्या देना है,
in which ओके सी यहाँ पे आप देखिए कि ये जो हमारा मैट्रिक्स था वो मैट्रिक्स प्रिंट हो चुका है और हमें प्लेन टेक्स्ट इनपुट के लिए पूछ रहा है। सो मैं इनपुट दे रहा हूँ टी एंड ए जो कि हमारा फर्स्ट पेयर है। तो टी ए की जगह मुझे पी एफ मिल गया, ठीक है। बाय द सेम वे एक और केस हम चेक करते हैं। सपोज कि हमारा ई एंड एल था, तो ई एल की जगह मुझे क्या मिलना चाहिए, एफ एंड टी। तो मैं ई एल पेयर डालता हूँ इसमें इनपुट में। ई एल, तो एफ टी हमें मिल रहा है, ठीक है। So by this way Playfair cipher will work.